جی آئیے ہم خدا کے کلام کو سنیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سنڈے سروس ہے اور ہم سب اکٹھے ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے. اور مجھے خداوند میں بڑی خوشی ہے اور ہم سب اس وقت خداوند میں خوش ہیں چونکہ ہم اس میں ہیں اس لیے خوش ہیں. ہاللیلویا. ٹھیک ہے. جب ہم اس میں نہیں ہوتے تو ہمیں وہ خوشی نہیں ملتی جو ہمیں چاہیے. تو خوشی جو ہے وہ خداوند میں ہے. کس میں ہے؟ خداوند میں ہے. یہ اس کے کلام میں ہے. تو آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے فلپیوں باب نمبر 2 اس کی آیت نمبر ابھی آپ کے بیچ میں پڑھی گئی 19 تا ہم نے 21 تک پڑھا. لیکن اس میں 20 تا 21 ایک دفعہ پھر پڑھنے لگا ہوں تاکہ جتنے سننے والے ہیں ان تک یہ کلام پہنچ جائے. لیکن کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو. سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے نہ کہ یسوع مسیح کی. خداوند خدا اس کلام کے وسیلہ خدا ہم سب کو برکت دے. آمین. جی خداوند آپ کا شکر ہو. اچھا آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس حالات کے اندر ٹھیک ہے جی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم ہیں. کیا ہمیں اپنی فکر ہے اور کیا پھر ہمیں خداوند کی فکر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو ذرا رکھ کر خدا کے کلام میں سے پالوس رسول کی جو تعلیم ہے روح کی ہدایت سے. کس کی ہدایت سے؟ ٹھیک ہے. یہ اس کا کوئی اپنا کلام نہیں ہے, کوئی اپنی مطلب عقل سے بات نہیں کر رہا. چونکہ یہ الہامی کتاب ہے, یہ روح کی ہدایت سے لکھی گئی ہے, خدا کے روح نے لکھوایا ہے یہ کلام. تو اس لیے یاد رہے آج ہم باموقع باتیں کریں گے. اچھا جی یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں نا ٹھیک ہے, کوئی بھی یہ نہ سوچے شیطان کو کوئی موقع نہ دے کہ جی ایک کلام منو لگدا پیا. ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ بیچ میں بھی ہوں, ہم سارے بیچ میں ہیں. چونکہ زیادہ تر کلام جو ہے نا ٹھیک ہے یہ ہماری جو ہے نا آنکھیں کھولتا ہے, ہمارے ذہن کھولتا ہے, ہمارے کان کھولتا ہے, ہمارے دل کھولتا ہے تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے کہ کیا ہے. لیکن جو جسمانی ہے وہ باتیں کرتے ہیں, لیکن جو روحانی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے آج کیا کیا ہے؟ تربیت کی ہے. کیا کیا ہے؟ تنبیہ کی ہے. ٹھیک ہے. نصیحت کی, ملامت کی ہے. تو ان دنوں کے اندر آپ کو پتہ ہے چونکہ یہ 10ویں سے 12ویں بلکہ اس سے بھی آگے جو اور 2-3 مہینے ہیں, چونکہ یہ سردیوں کے جو ہے دن ہیں, سردیوں کا موسم ہے, موسم سرما ہے, اب گرما نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, گرمی گزر چکی ہے. تو ان میں لوگ بیاہ شادی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. بلکہ یہ سیزن ہے. یہ کیا ہے جی؟ سیزن ہے. اس سیزن کے اندر لوگ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, شادی بیاہ اور کھانے پینے کے تعلق سے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم جتنے بھی سب یہاں پر موجود ہیں, چونکہ میں بھی اولاد والا ہوں ٹھیک ہے جی, اور اس کے ساتھ یہاں پر بہت زیادہ اولاد والے بیٹھے ہیں. کچھوں کی شادیاں ہو چکی ہیں بچوں کی, کچھوں کی رہ گئی ہیں. تو اس کو ہم جو ہے نا مد نظر رکھ کر سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی پالوس رسول نے جب یہ خط لکھا فلپیوں کے نام ٹھیک ہے جی, وہاں کی کلیسیا کو جب یہ خط لکھا تو خدا کے روح نے لکھوایا. آئیے ذرا دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے لکھا ہے. پالوس رسول کہتا ہے کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں. کیا لکھا ہے؟ میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سنیں ذرا, دیکھیں جس طرح کا خیال وہ رکھتا تھا نا, جس طرح کی نیت وہ رکھتا تھا, جس طرح کی سوچ وہ رکھتا تھا, جس طرح کا وہ خیال رکھتا تھا, اس طرح اسے کوئی اپنے جیسا ہم خیال نہیں ملا. ٹھیک ہے. اچھا اس کو ایک ضرور ملا. آئیے ذرا دیکھیں اس کا کیا نام ہے کہ اس کو جو ہم خیال ملا, لکھا ہے کہ ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو. ٹھیک ہے. کس کے لیے؟ صاف دلی سے. اچھا اس کو اگر کوئی مطلب خط کو پہنچانے میں جس نے رہنمائی کی یا کلیسیا تک یہ خط پہنچایا گیا تو وہ تیموتھیس تھا. کون تھا؟ تیموتھیس. ٹھیک ہے. وہ چونکہ اس کا ہم خیال تھا.
ठीक है जी। देखो रूहानी बंदे दी दोस्ती होती रूहानी दे नाल, ठीक है क्या? रूहानी बंदे की दोस्ती किसके साथ होती? रूहानी के साथ। और जिस्मानी की दोस्ती किससे होती है? जिस्मानी के साथ। तो वो चाह रहा था कि जो फिक्र मुझे है ना, जो फिक्र किसे है? मुझे है, वो ही फिक्र मेरे हम खिदमत को हो, हम ख्याल को। तो उसने तिमोथियस को ये जो है ना अपना ड्यूटी सौंपी कि वो फिलिपियों के नाम वहां की कलीसिया को खत पहुंचाए। तो इसने तिमोथियस का जो है चुनाव किया, ठीक है। याद रहे, मेरी बात सुने, याद रहे कि यहां भी इस डाइस पर, इस स्टेज पर बड़े आना चाहते, ठीक है। लेकिन आएंगे तो वो ना, पादरी साहब तो उसको खड़ा करेगा जो हम ख्याल होगा, जी चुने हुए, शाबाश, जो बरगजीदा है। बरगजीदा कहते हैं चुने हुए को, ठीक है। तो जिनको खुदा चुन लेता है उनको खुदा अपने जैसा बना लेता है। हालेलुया, ठीक है, अपने जैसा। तो जब अपने जैसा बना लेता है तो फिर याद रहे कि वो ढूंढता है कि वो भी क्या करे, उसके जैसा हम ख्याल हो, ठीक है जी। तो इसलिए याद रहे, हर कोई कलाम की मुनादी नहीं कर सकता, इसकी बशारत हर कोई नहीं दे सकता कलीसिया को। तो इसलिए ये चुनाव है खुदा की तरफ से। तो इसलिए तिमोथियस का चुनाव पौलुस रसूल ने किया, ठीक है जी। अच्छा, अब याद रहे उसने ये भी कहा कि कोई ऐसा हम ख्याल मुझे नहीं मिला जो साफ दिली से, कैसे? जिदा दिल साफ होवे, जिसके हाथ साफ हो, जिसका दिल पाक हो, जिसके कान, ठीक है, जिसकी आंखें, जिसका ज़हन, जिसका दिल क्या हो, पाक और साफ हो। तो इसने तिमोथियस को जो है ये खिदमत सरंजाम, ठीक है, उसके की, उसको सौंपी कि भाई ये जाकर जो है ना, ठीक है, बताए कलीसिया को। अच्छा, क्या बताए? आइए जरा सुने, लिखा हुआ है, लिखा है कि तिमोथियस को कहा, लिखा सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में हैं। किसकी? किसकी फिक्र में? सब की बाबत बात आई है, लेकिन सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना के यीशु मसीह की, ठीक है। अच्छा, सबको किसकी फिक्र लगी हुई है? अपनी अपनी बातों की फिक्र में, सारे के सारे अपनी अपनी बातों की फिक्र में लगे हुए, पड़े हुए हैं, लेकिन यीशु को किसी की फिक्र नहीं है। अच्छा, अब सुनिए जरा, मैं आपको जो आज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको खुदावंद की फिक्र है ना, किसकी? खुदावंद की फिक्र, तो आप कभी भी उसका सबत जो है उसको भूलेंगे नहीं, उसको याद रखेंगे। आपके अंदर खुदा का डर होगा। जी बिल्कुल, ठीक है, उसे याद रखेंगे। चूंकि देखो मेरी बात सुनो, याद रहे पौलुस के बाद तिमोथियस है जिसको फिक्र है, ठीक है, किसकी? यीशु मसीह की। तो इसी तरह पौलुस रसूल ये कहता है कि मेरी मानिंद बन जाओ। क्या करो? मेरी मानिंद बन जाओ, जैसा मैं मसीह की मानिंद बना। तो इसलिए याद रहे कि जिनको खुदावंद की फिक्र होती है ना, ठीक है, वो खुदा दे घर होंदे ने, ठीक है। तो शाही साहब, मेरी बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी बाजी भी यहाँ पर बैठे, मिसेस आदिल और मिसेस शाहिद, इनके बच्चों की शादी थी जी, ठीक है। तो भी अपना खुदावंद का शुक्र है कि ये अपना, मेरी बहन जो है समनाबाद पक्की टट्टी से वहाँ आए हैं रात को, जितने बजे भी आए हैं, सुबह इन्होंने चर्च की तैयारी की है। इसका क्या मतलब है कि इनको, ठीक है, खुदा के घर की, खुदावंद की, लोगों की क्या थी? फिक्र थी कि आज आना है, आज होना है, यहाँ पर इबादत होनी, खुदा ने उतरना है, ठीक है। भाई आदिल भी हमारे बीच में, भाई सलीम, मसीह की फिक्र की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रहे, इंसान होते हुए फिक्रे उसको आद बाती हैं, लेकिन अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप खुदावंद की बिल्कुल फिक्र करना छोड़ दे, ठीक है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका एक सबत जो छूटा है ना, वो आपकी शिफा और निजात था। चूंकि शैतान बड़ा चालाक है, शैतान हमें फिक्रों में डाल देता है, ठीक है, वो हमारा बरकत का सबत होता है, वो हमारा आराम का सबत होता है, वो हमारी तैयारी का सबत होता है। तो याद रहे कि शैतान नहीं चाहता
کہ आप खुदावंद की फिक्र करके उससे आराम पा लें, ठीक है, उससे बरकतें ले लें, उससे शिफा ले ले, उससे निजात ले ले, उससे मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। वो बड़ा चालाक है, वो खिलाफ है, वो क्या जी, खिलाफ है, ठीक है जी। तो अपनी अपनी फिक्रों जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए याद रहे कि आज के दौर में सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है जी। किसको, ठीक है जी, सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी है, ना कि मसीह यीशु की फिक्र है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, इसे आगे सीखते हैं। मैंने एक जगह कापर स्टोर यहाँ पे चौक में एक भाई थे, नाम नहीं लेना चाहता, उनके हाँ मुझे प्लाट मिला, बड़ा अच्छा चर्च, बड़ा अच्छा सेटअप बन गया वहाँ, ठीक है। लोग आना शुरू, कोई रिक्शे पे आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, इस तरह कोई अपनी कन्वेस पे आ रहा है, तो लोग जो आना शुरू हो गए, ठीक है। हुआ क्या कि चर्च के दौरान जो है, मतलब रात को, हफ्ते की रात को, ठीक है जी, उनकी कोई ताई चाची थी, उनकी डेथ हो गई, जिस के घर में हम दुआ कराते हैं, वो आगे कापस तो शादी वो है ना हीरांजा शादी हाल, उसकी गली में उनकी ताई थी। अब सुबह जब मैं गया तो मैंने देखा जी कि ताला लगा हुआ है उस प्लाट को, जहां पर संडे सर्विस की इबादत हो रही थी। वो खुद ही उतारने वाले, क्या करने वाले, खुद ही उतारने वाले, भाई साहब टेंशन ना लो, वो ठीक है, असी खुदावंद की फिक्र करने आ, ठीक है जी, हम चर्च लगाएंगे। हुआ क्या जनाब, मैंने ना उसको कॉल की, वो फोन ना उठाए। अब लोग आते जा रहे हैं, मैं भी बाहर खड़ा हूं, ठीक है, चौक में लोग भी आकर खड़े हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा हुआ क्या कि उस भाई को जो मर गई ओदी फिक्र पै गई। मैं उसको कॉल कर रहा हूं, वो फोन नहीं उठा रहा। उसके भाई को किया, कहता यार वो जरा मसरूफ है, वो ना चावल लैन गया है, वे खान पीन का बंदोबस्त करे। मैं क्या मेरा फोन ते चुके, मुझे चाबी दे जाए, मुझे चाबी तो दे जाए। अच्छा मेरे पास से गुजर गया जनाब। ऐसे एक दफा मतलब जो है ना, उसने एक दफा गया और एक दफा आया है, मैं उसको आवाजें देता रहा कि उसने मेरी एक आवाज नहीं सुनी। मैं रो पड़ा। मैं क्या हुआ, मैं रो पड़ा कि इसको खुदावंद की फिक्र नहीं है, इसको मरी मां की फिक्र पड़ी हुई है। आप कलाम से वाकिफ भी हैं, यीशु ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे क्या कर, दफन करने दे। और ठीक है जी, मुर्दों को अपने अपने जो मुर्दा है, ठीक है, या मुर्दे, उसे दफन करने दे और तू मेरे पीछे चल, ठीक है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मेरा बाप अगर मेरे घर में मरा है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, उसकी फिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले चर्च लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, चर्च लगाऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है मैं अपने वालिद को देखूंगा। इसका मतलब ये है, भाई आप मुझे चाबी दे जाते, ठीक है, आप कहते भाई साहब ये तुसी चर्च खोलो, ठीक है जी, ये चर्च लगाओ आप, आज जरा मैं मसरूफ हूं, मेरे बच्चे यहीं पे है, ठीक है जी। लेकिन उसने क्या किया, उसने चर्च ही खुलने नहीं दिया, ठीक है। इतनी फिक्र मरी मां की। अब हमें इस बात का अंदाजा है कि वो जिंदा था, ठीक है, वो जिंदा है और वो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, ठीक है। ऐसा खुदा जिसकी हम मतलब हम जिंदा खुदा की क्या करते हैं, इबादत करते हैं, ठीक है। और दुनिया में ऐसा खुदा किसी को भी नहीं नसीब जो दीन मसीहत को नसीब है। तो फिर भी हमें ऐसे खुदा की जिसने हमारी फिक्र की, आसमान को छोड़ा और जमीन पर आ गया और इस दुनिया पर रहकर जो है दुखों की जिंदगी बसर की, तकलीफें जो है अजियतें ली हैं, और फिर जो है आपको पता है कि खून तक बहा दिया, सलीब पर चढ़ गया, ठीक है। इतनी फिक्र के हमारा मिलाप दोबारा बाप से करा दे, ठीक है। कोई हैकल के अंदर जा नहीं सकता था, किसी को शार्प नहीं था, किसी को हक नहीं था, सिर्फ कायनों के सिवाय, ठीक है, कोई नहीं जा सकता था खुदा की प्रेजेंस, उसकी हजूरी में,
लेकिन यीशु ने जब जान दी तो हैकल का पर्दा लिखा है कि बीच में से दो हिस्से हो गया, यानी फट गया, दो हिस्से हुआ। इससे जाहिर होता है, इसका मतलब ये है कि आज के बाद सिर्फ काइन ही खुदा के घर में नहीं होगा, उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी में नहीं होगा, बल्कि ये भी होगा और आने वाला हर गुनहगार जो है उसकी नजात को उसके घर में हासिल कर सकेगा। हालेलुया। उसने तो हमारी बड़ी फिक्र की, जान दे दी। क्या किया? जान दे दी। ठीक है, तो लेकिन हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं आखिर में ये चंद बातें करके इसको वाइंड अप करने लगा हूं। जो रूहानी लोग हैं ना, ये बात सीख लो, जो रूहानी लोग हैं, जुमे की शाम से लेकर इतवार की शाम तक ये हमारे दिन नहीं है, ये हमारे दिन नहीं है। ठीक है, ये खुदावन के दिन है। किसके दिन है? और इसमें सिर्फ आपने सब्बत को याद ही नहीं रखना, मतलब इसको आपने इसको पाक भी रखना है। क्या करना है? इसे पाक। तो जाहिर बात है, जब आप ब्याह शादी में होंगे तो आप नापाक हो जाएंगे। क्या होंगे? जोड़ा तक भी नापाक जे। ठीक है, जोड़ा तक भी क्या है? नापाक है। तो इस चीज को सीख लो, सब्बत का दिन पाक है, हमें इस दिन को पाक रखना है। इसमें हमने कोई ब्याह शादी नहीं करनी। जितना मर्जी आपका रिश्तेदार आपको कहे, अच्छा जी पादरी नू की विच तुसी ले आए हो हैं, तानू नहीं पता इन्हां दिनां च छुट्टी होंदी है। अच्छा, बाकी दिनों में हम छुट्टी कर लेते हैं। और कैसी बात है, हफ्ता अगर बीमार भी रहे ना, महीना बीमार है, तो असी की करने आ, असी मंजी ते पै रहने, काम ते नहीं जाते। वो भी बाकी दिनों ठीक है जी, बिल्कुल। वो देखे पूरा महीना हम छुट्टियां कर सकते हैं, तो क्या हम खुदावंद की खातर, उसकी फिक्र की खातर ये दिन खुदावंद को नहीं दे सकते? दे सकते कि नहीं? कोई भी कदम उठाओ, सबसे पहले पादरी साहब को बुलाओ। ठीक है, उससे पूछो कि भाई साहब आप क्या कहते हैं, कलाम क्या कहता है, हमें गाइड करो, हम ये दिन रखने लगे हैं। अव्वल दर्जा खुदा को दो ताकि बच जाओ। ठीक है, आपकी औलाद भी बच जाए, कि त्या ना है बरकत की जगह लानत ले लवे। ठीक है, और ज्यादातर जोड़े बाबरकत नहीं होते, इसलिए कि वो खुदा की मर्जी को नहीं जानते, उसे पूरा नहीं करते। तो इसलिए ये दिन आपके लिए जो है ना, वो सिर्फ खुदावंद के है। जुम्मे की शाम से लेकर इतवार की शाम तक, पीर मंगल बुध ए दिनों दे विच तुसी जेड़ा ना अपना इंजॉय करो। ठीक है, शादी ब्याह करो, लेकिन इसके अंदर नहीं, क्योंकि अगर आप करोगे तो खुदावंद की फिक्र नहीं कर सकते। ठीक है, खुदावंद की हम फिक्र नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हो ना कि हम खुदावंद की फिक्र करें, ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या है? करना क्या है? हमें अदर्स डे में जी बिल्कुल। तो बाकी जो डे हैं, बाकी जो दिन हैं, उसके अंदर आप ब्याह शादी रखें, आप करें, ताकि आपको और आपकी औलाद को किसकी फिक्र हो? अच्छा, एक और गल दा दस लगा, बड़ी प्यारी बात सीखने वाली है। अच्छा, जब आप ऐसा करोगे ना, लोग आपसे पूछेंगे, यहाँ तक दीन इस्लाम पूछेंगे, वो कहेंगे, सवाल उठाएंगे, वो कहेंगे कि जनाब आप में तो हमने देखा है कि ये जुम्मे की शाम से लेकर इतवार की शाम तक फंक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपने क्यों ये दिन चूज नहीं किए? वो सवाल करेंगे। जैसे कल रात एक मुसलमान भाई हमारे बीच में था, उसकी मिसेज थी, उसकी मिसेज उसके कान में बार बार सवाल उठा रही थी, सवाल कह रही थी कि ये पास्टर जी हैं, इनसे पूछो कि इन हम में तो 4 शादियां, इनमें कितनी हैं, और अगर नहीं है तो क्यों है? ठीक है, अच्छा, अब तो याद रहे कि ये हम दीन इस्लाम में रहते हैं। ठीक है, हम और कौमों के अंदर रहते हैं, और हमने क्या करना है, उसके नाम को क्या करना है, इन कौमों के अंदर रहकर जलाल देना है। क्या दे रहे? जलाल। तो वो किस तरह मिलेगा? वो जब हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, जी बिल्कुल, रखेंगे, हाँ, तभी हम गैर कौमों के साथ बातचीत कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें क्या है? अब देखिए, बहन जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। जब हम, ठीक है जी, इन दिनों के अंदर फंक्शन नहीं करेंगे, तो जब वो सवाल करेंगे, आप बताएंगे ना, तो उन्होंने पता है कि कहना है, होण मनु
असल मसीह मिलिया जे ते पहले तो मैं ईसाइयां नूं मिलदा रहा वां, क्योंकि उनको कलाम का पता ही नहीं। ईसाई जो होता है उसको कलाम का नहीं पता होता, तो जो मसीह होता है ना उसको कलाम का पता होता है। ईसाई नहीं बनना हमने, ईसाई नहीं बनना। भाई ने बड़ी अच्छी बात की, इसे सही बनना है, मसीही बनना है। तो जब हम मसीह बन जाएंगे तो हम अव्वल दर्जा खुदा को देंगे, उसकी फिक्र करेंगे। खुदा आज के कलाम के वसीला खुदा हम सबको बरकत देगा।